to this inaugural episode of the ENFRA show. The ENFRA show, an exclusive show on energy, power and related infrastructure in the country. And we will keep bringing to you through this show a lovely piece of interaction with the best in the industry. And today we have two eminent guests with us. Welcome Hetal Mehta, Joint President of the Renewable Energy Promotion Association with me, and also Shri Privesan Murthy, who has spent time with Alstom and he has also spent time with Voith, and he retired from Voith as his Vice President Hydro. I am with you, Professor A.G. Iyer, the host of this show. I am the editor and publisher of ENERTIA. I'm also the president of the ENERTIA Foundation and also the president of the Renewable Energy Promotion Association. Welcome all of you. So today we are going to discuss with our two eminent guests the fundamentals related to our power sector, a sector that is the backbone infrastructure of this country. So to start with, I wish to bring this discussion today that India, at this point of time when we are entering the elections in 2014, are we not in a situation where we are now 240 gigawatt, but we are running a shortfall of roughly 80 gigawatt peak deficits? So with you, Murthy, what is your thinking on this? While media, most of our media colleagues and friends have been reporting that the shortfalls are at 4%, sometimes at 8%. Government itself has been talking about 13%. And here we see majority of the villages are not getting electricity. 18 hours power cut in most of the villages in India. What do you think of the situation? See, absolutely, there's a big gap between demand and supply for the electricity, which is very well known, and everyone accepts the power sector, accepts this fundamental, this one. If you see the growth of the power sector the last few years, what happened basically was, the thermal power generation initially has picked up very well. Then the government has come up with a huge potential of hydro development. But what happened is, in the last 3-4 years, the capacity addition in terms of power generation from hydro and the ultra mega power projects which have been put in place for a fast development of the sector have fallen back. That means that has resulted in a very big gap in the power generation capacity for this one. Yes, who are responsible for this? See, the policy initiatives are there, but basically the implementation is the problem. The decision making is the problem for these projects. That means the projects, if they have to move on time, the project management has to be strong. The decision has to be strong when the decision has to be taken. And this is where the problem has come up. And some of the private sector players who have taken up some of the projects like UMPPs and hydropower projects, they have not met with their obligations, and how they are getting away without meeting these obligations. These one question. I would like to just come in between on that. Basically, it's not a question of obligation. It's also a question of a complete policy paralysis. Now I come to Hetal Bhai. In this country, we have seen that there are states like Gujarat which have succeeded in the same environment. So how we are seeing that there is a major central government which is trying to do a lot of things, and we are also seeing that in all these times that the share of the central kitty in the power sector in terms of power generation is falling drastically, and it is more and more the states and the private sector of India that is contributing. In such a scenario, the writing is on the wall that the center will not be able to achieve. So don't you think that more than anything else, more than the lack of performance from the private sector, it is basically a complete policy paralysis of the central government? Absolutely, you are right, Professor. It's a paralysis of the policy. See, look, you can start with the looking or the fire plan, what we are doing for the generation, and what happened to 10th plan, 11th plan, 12th plan, and where we were, what we have planned and what we have achieved. So basically, when certain things are with the center, certain things are with the state. You are mentioning about the Gujarat. Yes, Gujarat is having surplus power today, but no one is ready to buy it. It is there. Right. Now on this question, how much is the surplus power in Gujarat today, according to you? In my view, Gujarat is not operating its gas-based power plants, which we are very well aware about. 5 gigawatt of gas-based power is lying idle, no supply of gas. That's again a policy paralysis. Exactly. When you are putting a gas-based power plant and you are not able to supply the gas, the huge investment is in the waste. That's all. So are we right that Gujarat has something like the highest capacity states in the country today? Maharashtra we know is about 25 gigawatt and they are claiming 29, but I am conservatively saying they have 25 gigawatt. Yeah. And Gujarat is also about 23 gigawatt, roughly. 19 they are able to operate, but practically they have 23 gigawatt. But when they operate 19, the state is happy with I think about 16 or 17 gigawatt. So that's the kind of 1 or 2 gigawatt of surplus. Yes.
So why not a nearby state which is suffering takes that electricity? See, that's all again politics. The simple. Gujarat is exporting power to some other state, maybe in the northeast, but not to the nearby states. So this is all basically, no one is on the common platform for the country in this country, you can say. All political parties, if they once they are on the common platform for the country, everything is possible in this country. But this is too utopian and ideal. We know that it is for the sake of opposition we are opposing. For example, if a neighboring state of Maharashtra cannot buy from Gujarat, then how do you look at, recently now there is an interesting development which I would like Murthy Sahab to look at it. कि we have now become a national grid. अब हम एक हो गए हैं. पूरे देश का जो ग्रिड है, जो ग्रिड अर्थव्यवस्था है इसकी, ये एक हो गई है. And the entire national grid is one. But does it benefit us? जब हमारे पास बिजली देने के लिए ही नहीं है तो ग्रिड एक करके क्या करेंगे? वो पूरा ग्रिड एक करने से भी फायदा क्या है? See, grid for the purpose of making it a national grid, we have achieved the national grid. That's perfect. But let's also not forget. Are we giving ourselves a kind of a certificate? Yes, that's what are we doing? I am coming to that. We have given subwashing ourselves that we have given a national grid for the country. But also look at the thing. If you see the recent this one, the capacity for transferring the power from east to south or any place is limited to 800 megawatt only. Oh my God! This is one what aspect. What we are saying here, look at that, 800 megawatt only the capacity transfer for such a large country where we are going to talk of gigawatt scale. Are we not making ourselves look like jokers to the world market? We are now talking of a common grid code, Mehta Saab. On this. We are talking about common grid code, a unified grid code, and we want to retain a frequency at 49.9 hertz to this 50.05 hertz. This was recently talked in Gujarat, where Yogendra Prasad opened this whole Pandora's box for us. How this country with just barely this kind of a model even expect to come anywhere close to the grid code? Absolutely. It's very difficult. I think it's at this stage we can say it's not even possible to maintain. Because see, generation, one side we are talking the lack of generation, one side we are putting some kind of framework, one side we are talking of the importing of the power. Nothing is on same on the common era, common platform. So are we taking the country for a ride? Are we saying that the Prime Minister and his cabinet unfortunately is taking this country for a ride? They are not telling the country the truth. We are short by 80 gigawatt. Majority of Indians are not getting electricity. And we are sending more of them out of the electricity access. Are we sending? क्या हम अपने लोगों को एक बोलते हैं ना जो गरीबी रेखा है जो अभी ऊर्जा गरीबी रेखा की तरफ लेके जा रहे हैं? Are we sending them to energy poverty? Murthy Sahab. Absolutely, looks to be the same way. It's supposed to be by 2012, every house in India used to have a power. That means at least a bulb and light, and which has not happened, which shows that we are not able to give the power to everyone. That's shortage of the power. Look at that, what he says. He says, now I'll explain that what Murthy Sahab is telling to you viewers. We had a mission called the Power for All by 2012. Now we are at powerlessness for all by 2014. My God. Yeah. Where have we reached, sir? Hedal bhai, where have we reached? We are totally in the dark. We are total in the dark. Whatever we have planned, we are not able to achieve. All the policy is having paralysis. So still nothing is on the right side at this juncture. You have to work hard. You have to do something for this nation. सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इतना कुछ हम बोल रहे हैं, गुजरात कैसे कर पा रहा है? छत्तीसगढ़ गए हम, छत्तीसगढ़ कैसे कर पा रहा है? Now power surplus state, these two states. Now छत्तीसगढ़ is also power surplus. Although उनके जो distribution losses हैं वो थोड़े high level पे हैं. तो ये कुछ states कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं. इसका क्या कारण है? गुजरात में आपको अगर बताऊं तो पहले से ही उन्होंने अपनी पॉलिसी सही तरीके से, मतलब उनको जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उसको अलग अलग सेक्टर वाइज डिवाइड कर ली. एंड उन्होंने आज अगर आपको पता है तो DGVCL इज इन नाउ इवन 10 below 1 digit their losses are there, means 10 digit. दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड आज देश की सबसे एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड. हेतल जी कह रहे हैं कि उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस हैं वो केवल 9.5% हैं. ये बेस्ट है इस कंट्री में किसी भी डिस्कॉम का. आगे बताइए, सही बात है. ये कैसे हो पा रहा है? ये कैसे हो पा रहा है? तो वही जो अनबंडलिंग ऑफ द जो कंपनी करेगा डिस्कॉम को कर दिया गया और उसकी वजह से उसमें अच्छी तरीके से थोड़ा गवर्नेंस आया.
See, good governance. सारे राज्यों ने किया। देखिए महाराष्ट्र ने भी अनबंडलिंग करी, एपी ने किया, एपी ने किया, लेकिन ये क्या एक राज्य की अनबंडलिंग अच्छी है और बाकी राज्यों की खराब है? नहीं, आज पूरे डिस्कॉम की लॉसेस 5 लाख करोड़ है इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं। इसके साथ में गुड गवर्नेंस इज अ बिग पैरामीटर, बिग ये फैक्टर। मेन बात हुई गुड गवर्नेंस। इन दिस इशू हमने ये जो हमने एकदम मुद्दा छेड़ा है, हमने इसको गर्मा गर्मी की मुद्दा छेड़ा है। इसके अंदर यू मस्ट अंडरस्टैंड इस कंट्री में पॉलिसी पैरालिसिस की काफी बात हुई, सभी सेक्टर्स में बात हुई, परंतु हमारे जो बिजली का क्षेत्र है, जो बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी में बोल रहा हूँ, जो रीढ़ की हड्डी है इस राष्ट्र की, उसकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कैंसर आ गया है। कैंसर आया सही है सर, सही, बिल्कुल सही है। और ये कैंसर हम कैसे निकालेंगे मूर्ति साहब? See, इसके तो the good governance, basically the power sector has to have its own, you must have first a good power minister, Right. and that man should have the vision for the power sector. तो आपको क्या लगता है कि इसके पहले शिंदे साहब थे, क्या बहुत अच्छे पावर मिनिस्टर थे? उन्होंने अपने टेन्योर में क्या किया? Well, it's not, I will not. मुझे पूछना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा ओपनली पूछना पड़ेगा। आज देश में सब लोग देख रहे हैं, क्या हमारे जो ऊर्जा मंत्री थे, वो जो आज होम मिनिस्टर बन गए, क्या उन्होंने इस सेक्टर को जस्टिस दिया? We can't rate him very high at all as a power minister. Even today, even if you ask anybody in the power sector, everybody will rate Mr. Kumar Mangalam as the best power minister India ever had it. And then Mr. Suresh Prabhu. These are the two power ministers who have done the best for the country so far. मैं इसमें पूछना चाहूंगा, देखिए बड़ी क्रिटिसिज्म वाली बात होगी, मैं मेहता साहब को पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसी बात थी तो ये सुरेश प्रभु जी को तो इस वक्त तो शिवसेना ने टिकट ही नहीं दिया। वो तो आप लोकसभा लड़ेंगे नहीं, बोलते राष्ट्र के लिए काम करेंगे। ये तो बड़ी पॉलिटिकल स्टेटमेंट हुई, आपको तो साइडलाइन कर दिया। अगर वो इतने अच्छे ऊर्जा मंत्री थे तो उद्धव ठाकरे जी ने आज उनको अपना नुमाइंदा क्यों नहीं बनाया, लोकसभा के इलेक्शन क्यों नहीं लड़ने दिए? ये बात में आपने कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन सोचना पड़ेगा। हम शिंदे जी को बोल रहे हैं कि वो अच्छे मंत्री नहीं है, वो तो हम उसके अंदर पूरा मूल्यांकन करेंगे इन प्रोग्राम में, एपिसोड्स में as we go along, but should we not also talk about why this kind of a thing happened? Did minus electricity act, was Suresh Prabhu able to impact the sector in any other way? I want to ask नहीं, नहीं, वैसे देखा जाए तो उनकी बात सही है, लेकिन कंपेयर हम किसको कर रहे हैं? अगर शिंदे साहब के साथ, कुमार मंगलम साहब के साथ और दी तीनों की कंपेयर करें तो कुमार मंगलम इज कमिंग नंबर 1, देन इज नंबर। शिंदे साहब की तो बात करें, क्योंकि अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं कि 80 गीगावाट शॉर्टफॉल है। अगर लास्ट 5 साल में हमने कुछ डाला ही नहीं है तो शॉर्टफॉल बढ़ने वाली ही है। नहीं, ये तो बड़ा क्लेम हो रहा है। देखिए क्या है कि क्लेम हो रहा है कि हम तो 10,000 मेगावाट से 15,000 मेगावाट ऐड कर रहे हैं। ये क्लेम ये भी आई अभी रिसेंटली फ्रॉम द पावर मिनिस्ट्री कि पिछले साल हमने 20 गीगावाट ऐड करे हैं। ये सारे जो है तथ्य टोटली झूठे हैं, दिख रहे हैं, क्योंकि इस देश में पिछले 2 पंचवर्षीय योजना में लिटरली ये देश खिसक गया है। मतलब पहाड़ के नीचे खिसका नहीं है, गिरा है बुरी तरह से और उसके पैर टूट गए हैं। ये 80 गीगावाट का शॉर्टफॉल करीबन 55 गीगावाट था जब हम लास्ट टाइम मिले थे। जब हमने रिपोर्ट करी थी, हम लोग सब इन्वॉल्व थे उसमें 2009-2010 के अंदर ये बात हुई थी हमारी। वो 55 गीगावाट से बढ़कर 80 गीगावाट हुआ, तो देश के ऊपर आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है। और जो भी एडिशन जो बोल रहे हैं ये भी बैकलॉग से आ रहा है, पिछले बैकलॉग से आ रहा है, एडिशन का बैकलॉग जो पहले के करने थे वहां से आ रहे हैं। धीरे नया प्लान तो वहां का वहीं रुका है, नया प्लान तो वहीं रुका हुआ है, उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, इसका हम एविडेंस बोलेंगे, अब सबके सामने हम एविडेंस लाएंगे, और ये है कि क्या हमारी हाइड्रो की जो क्षमता है, क्या ये बड़ा एविडेंस दे रही है कि इस तरह से निकम्मापन जो परफॉर्मेंस का हुआ मिनिस्ट्री के अंदर, और इस पे सभी इन्वॉल्व हैं, मंत्री इन्वॉल्व हैं, इसमें उस समय के सेक्रेटरी इन्वॉल्व हैं, उस समय के लोग जो खाली अपनी पोजीशन और अपने लिए आपाधापी कर रहे थे, लेकिन देश की किसी तरह से रीढ़ की हड्डी के कैंसर को ठीक करने को तैयार नहीं थे, कैंसर को बढ़ा रहे थे। अब फॉर एग्जाम्पल हाइड्रो सेक्टर का 26 से 30% का शेयर होता था एक समय में, आज वो गिर के बड़ी बुरी परिस्थिति में 16%। तो हमारा देश चलेगा क्या बिना पानी से बिजली उत्पादन किए? कैसे चलेगा? हाइड्रो पावर के बिना ये देश कैसे चलेगा, बताइए। हाइड्रो पावर इज वेरी क्रिटिकल फॉर द कंट्री, because this is the power which can start and stop immediately. That means it is a peak power for the peak demands of the country. Hydro power is very essential. पीक पावर क्या है? Okay. बेस लोड क्या है? बेस लोड होता है न्यूक्लियर पावर और थर्मल पावर, which is constantly gives the power which cannot be, the plant जब ट्रिप हो गया तो इसको चालू करना बहुत मुश्किल होता है, टाइम लगता है इसमें, ये इमीडिएटली चालू नहीं हो पाता है। लेकिन जो बिजली से जो पानी से जो पावर बनता है उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बहुत जल्दी होता है। इसका मतलब जब डिमांड आया है आप इस प्रोजेक्ट को चालू करके उसको ग्रिड में जल्दी जरूर आ सकता है, लेकिन ये थर्मल पावर से नहीं हो सकता है, न्यूक्लियर से नहीं हो सकता है, सोलार से नहीं हो सकता है ये। लेकिन फॉर हाइड्रो जब होगा तो
आपको जब डिमांड एक जगह से आ रहा है, आप 2-3 प्लांट को चालू करके, हाइड्रो पावर प्लांट को चालू करके आप डिमांड बढ़ा सकते हैं, पीक सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी से नहीं हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और मैं ये व्यूअर को समझाना चाह रहा हूं मूर्ति साहब बोल क्या रहे हैं। मूर्ति साहब का कहना है कि जितने भी ऊर्जा स्रोत रहे हैं, जैसे कोयला है, या अगर हम उसको ऊर्जा को हम पारंपरिक बोलते हैं, लेकिन मेरे नजर में ऊर्जा जो कोयले से बन रही है वो पारंपरिक नहीं है। पारंपरिक तो जो सोलर और सन है पारंपरिक है। तो इसके आर्गुमेंट ना करके अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी है आपकी। जो जितने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, चाहे विंड है, सोलर है, ये सब है, माइनस हाइड्रो भी रिन्यूएबल है, बहुत बड़ा रिन्यूएबल है। तो और इवन न्यूक्लियर भी रिन्यूएबल है, वो एक बहुत बड़ी अलग बहस हम छेड़ेंगे। लेकिन जितने एनर्जी के स्रोत हैं, केवल हाइड्रो पावर और केवल गैस पावर, ये कभी भी सिस्टम के अंदर आ सकता है और कभी भी हम उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि इसकी एक कैपेसिटी है। इसीलिए ये पीक पावर को मैनेज कर सकता है। पीक का मतलब है हमारे जो दिनचर्या में आप देखेंगे तो दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिमांड होती है। जैसे शहरों के अंदर आज ऐसा हो रहा है कि सुबह एकदम डिमांड चालू होती है, दोपहर के अंदर डिमांड डाउन होती है और शाम के अंदर जो आपका स्टॉक का प्रोडक्ट डिमांड कम हो जाती है। और रात के अंदर जब लोग सोते हैं, केवल वो कोई कारखाने नहीं चलते, कुछ नहीं, तो उसमें कम पावर होती है। तो इसको जब भी कम पावर की जरूरत होती है, बेस लोड पे आ जाता है। जब अचानक पावर की बिजली की क्षमता की जरूरत होती है तो पीक लोड की बात हो रही है। और इधर मैं आपको कहना चाहूंगा कि इधर ही हाइड्रो पावर और गैस का बहुत बड़ा उपयोग है। और इसके साथ मैं इस सेगमेंट पे आपको एक अल्प विराम देना चाहूंगा और हम इस डिस्कशन को, बड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशन को चालू रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाजिर होंगे फिर आपके साथ एनफ्रा शो पे। प्रोफेसर आयर हियर। महाराष्ट्र समंदर की लटों में चांदनी का गजरा, पर्वतों की आंखों में बादलों का कजरा। हिंदुस्तान की जान है ये रंग रूप चेहरा, संस्कृति का धनी है राज सुंदर सुनहरा। धर्म यहाँ पे तो मेहमान नवाजी है, सबका दिलों से होता स्वागतम यहाँ। अनंत है, अपार है, ये प्रांत नहीं ये प्राण है। जय 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 महाराष्ट्र मेरा, देखो प्यारा महाराष्ट्र मेरा। Maharashtra. Welcome back after the short break to this ENFRA show. We are having our two eminent guests today, Hetal Mehta and Mr. P.V.S. Murthy, and we were discussing the status of the power sector, and we were also discussing, हमने ये बात भी करी कि देश की क्या परिस्थिति है, ऊर्जा सुरक्षा की क्या परिस्थिति है। इस वक्त देश किस तरह से ऊर्जा गरीबी की तरफ जा रहा है एक प्रकार से। इसमें मैं आपको कुछ फिगर देना चाहूँगा ये अपने दर्शकों को। बेसिकली हम अगर देखें तो हमने 4 कंट्री का सर्वे किया ENERTIA ने, और 4 कंट्री के हमने फिगर्स बनाए। हमने 2 आंकड़ों के ऊपर उसको हमने इनको देखा और आंका। उसके अंदर पहले है कि पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, मतलब पर पर्सन पर कैपिटा बिजली कितनी लोग को मिल रही है। और इसमें 4 देश है, इंडिया, चाइना, जर्मनी एवं यूएस। और दूसरी चीज जो हमने देखी, इनकी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की नेट इनकम पूरे देश की कितनी है इन चारों देशों की। तो इनमें कुछ हमें समानता दिख रही है क्या? मैं इन फिगर्स को आपके सामने रख रहा हूं। इसमें सबसे पहले भारत, इंडिया का जीडीपी जो 2013 की मैं बात कर रहा हूं, एंडेड $2 ट्रिलियन की थी, जिसके अंदर हमारे देश में पर कैपिटा कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी की 900 यूनिट, मतलब 900 किलोवाट आवर बिजली हमारा एक नागरिक कंज्यूम कर रहा था पर कैपिटा। इसी मुद्दे को अगर हम चाइना से देखें, चाइना के लोगों की उनकी जीडीपी $7.8 ट्रिलियन 7.8 ट्रिलियन, और पर कैपिटा बिजली कंजम्पशन खपत, मतलब हर पर्सन चाइना का पर कैपिटा 4000 यूनिट। ख्याल रखिएगा 4000 यूनिट, भारत का 900 यूनिट था। तीसरा जो देश है जर्मनी, जो यूरोप का सबसे बढ़िया देश है, सबसे प्रोग्रेसिव देश है, और वो रिसेशन के समय पे यूरोप में एक ही देश आगे बढ़ा, वो था जर्मनी। उसके क्या हालात थे? उसकी जीडीपी $3.97 ट्रिलियन, मतलब 3.97 ट्रिलियन, और उसके समानांतर उसकी पर कैपिटा पावर कंजम्पशन, हर एक का एक पावर कंजम्पशन 9000 यूनिट था। 9000 किलोवाट आवर। अब आते हैं विश्व के सबसे, हम मानते हैं जिसको शक्तिशाली देश,
तो उस समझना चाहिए शक्तिशाली मिलिट्री से है कि सबसे आर्थिक और क्या बोलते हैं आपको इकोनॉमिक रूप से शक्तिशाली है क्या। यह है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका 16 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जीडीपी उत्पन्न कर रहा था 2013 में, और इसके लिए उसकी पर कैपिटा मतलब हर अमेरिकन जो कंज्यूम कर रहा था 15,000 यूनिट। मेरे भाइयों देखिए, जर्मनी 9,000 यूनिट, 15,000 यूनिट यूनाइटेड स्टेट्स, भारत 900 यूनिट, चाइना 4,000 यूनिट। अब ये समझ रहे हैं हमारी जो जीडीपी का जो मूल्यांकन हो रहा है इसकी कमती क्यों हो रही है, कम क्यों हो रहा है, गिर क्यों रहा राष्ट्र। अब इसके बारे में आप क्या कहते हैं, पहले हेतल भाई। नहीं, जो फिगर्स आपने दिए वो बिल्कुल सही फिगर है, और अगर कोई भी देश का अगर हमको जीडीपी या कोई भी आप कैलकुलेशंस करें तो बेसिक इंफ्रा इज मस्ट। और बेसिक इंफ्रा आज की तारीख में एनर्जी, अगर एनर्जी है तो सब कुछ है, एनर्जी नहीं है तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे चलेंगे। सो एनर्जी की जो हमारे वहाँ कमी है, शॉर्टफॉल है, जिसको हमको प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। अगर चलो मान लो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं है। सर देश के इंसान को आप ऊर्जा ही नहीं दे रहे हैं, आप उसकी रेस क्या कर रहे हैं, आप तो उसको इतना बुरा हाल कर रहे हैं कि 900 आप किलोवाट आवर इंडियन को दे रहे हैं। और आप देखिए कि इसके सामने क्या हो रहा है, अमेरिका को 15,000 यूनिट मिल रहे हैं। अब अमेरिकन भारत देश से 15 गुना नहीं 16 गुना 17 गुना आगे होगा कि नहीं होगा। जर्मनी हमसे 10 गुना आगे होगी कि नहीं होगी। और चीन का ही देख लीजिए, जिसके साथ हम हमेशा अपनी तुलना कर रहे हैं, इस वक्त चीन के लोग 4,000 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं पर कैपिटा, और भारत 900 कर रहा है। इसका मतलब चीन के लोग 5 गुना अधिक तरक्की कर रहे हैं। और ये पूरा हमारे आंकड़ों में दिख रहा है कि हमारे चीन के हिसाब से 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर हमारी जीडीपी, और चीन की 7.8 ट्रिलियन। देखिए किस तरह से जीडीपी का ग्रोथ समानांतर नहीं है, जीडीपी एकदम बढ़ जाती है अगर आप ऊर्जा उत्पन्न करेंगे और लोगों को देंगे। तो क्या इस तरह से मैंने जो पहले बात उठाया, दर्शकों, देश को ऊर्जा गरीबी की तरफ बुरी तरह से अग्रसर किया जा रहा है एक निकम्मी सरकार, एक निकम्मी व्यवस्था के कारण। मैं इसको निकम्मी व्यवस्था इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके सामने मैंने ये प्रस्तुत किया और हमारे लोगों ने भी इसको माना कि इसी प्रकार के हमारे आंकड़े हैं, और इस प्रकार के आंकड़ों से हम कैसे इस देश के एक नागरिक को, इंडियन सिटीजन को आगे ले जाएंगे। इस तरह की पुअर परफॉर्मेंस, बच्चा स्कूल जाता है तो एक एग्जाम में टपक जाएगा, फेल हो जाएगा, तो उसको उस क्लास से आगे नहीं जाने दिया जाता। इधर तो 20 मार्क्स नहीं लिए जा रहे हैं, फिर भी वो आगे जा रहे हैं और इनको ताम्रपत्र दिए जा रहे हैं। बताइए इसका क्या करेंगे, मूर्ति साहब क्या बोलते हैं आप। Well, this is basically the figures very clearly show India is much lagging in the per capita this one. You see, one of the reasons is China is at 7.8 trillion US dollars with 4,000 units per capita. One of the major things in China, the manufacturing sector, is the growth, which is also totally dependent on the power. That means the manufacturing sector gives a lot of power to needed for the country, which has been provided by that country. Whereas in India, for the last 15 years, the manufacturing sector has not grown at all virtually. And that is also, if you see in the per capita, that's one of the reasons. That means because your power is not there, your manufacturing sector is not growing, it's all interlinked with various sectors, production also. मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, 2 मिनट आपसे मैं बीच में टोकना चाहूंगा आपको। क्या बोल रहे हैं मूर्ति साहब, ख्याल रखिएगा। मूर्ति साहब का एक तरह से कहना है और इल्जाम है इनका कि ये पॉपकॉर्न इकोनॉमिक्स के पीछे हम पड़े हैं, हम पानीपुरी की दुकान और भेलपुरी की दुकान खोल रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। हम देश में ऊर्जा को यूज करके मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। क्या कहते हैं हेतल भाई, गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ग्रोथ से, टेक्सटाइल की ग्रोथ से, जहां उत्पादन का संबंध हुआ है, ना कि केवल आईटी और सर्विसेज का। आईटी सर्विस का कंट्रीब्यूशन है लेकिन वो इतना लोगों को नहीं ले सकती अंदर। ये बात मूर्ति साहब एक प्रकार से कह रहे हैं, ये ऊर्जा ना होने का कारण है। क्या इसको मानते हैं आप? बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं तभी उसकी आपको उपलब्धि, उसको आंकड़े में आप मूल्य कर सकते हैं। सो विदाउट मैन्युफैक्चरिंग हाउ कैन यू थिंक दैट योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग? इट कैनॉट गो। यू सर्विस सेक्टर इज रिक्वायर्ड, बट सर्विस सेक्टर कब चाहिए? जब कुछ प्रोड्यूस करो। नहीं, सर्विस सेक्टर को हमने आगे लगा दिया है। हाँ। हमने बैलगाड़ी को आगे लगा दिया, बैल को पीछे लगा दिया। बैलगाड़ी आगे लगा दी है, बैल पीछे लगा दी है। देखिए क्या हालत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा धीरे धीरे गिरता जा रहा है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ अभी केवल 2 से 2.5% की हो रही है,
और ये बड़ा क्लियर दिख रहा है कि ऊर्जा ना होने के कारण इस इंडस्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बुरी तरह से पतन हुआ है। मूर्ति साहब, You see, that's the basic reason, as I said, is the manufacturing sector growth is essential for the economic growth and the GDP growth, which no government can today ignore that fact. And I think that's where the whole concentration has to go up. The power sector generation growth has to be towards that. And if you say, if the GDP has to grow by 9%, you need to at least the power sector grow by 11% every year. That is the target with which the whole economy has to work it out. आपका क्या कहना है हेतल भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही है, लेकिन उनकी बात से मैं इस तरीके से सहमत हूँ, लेकिन मैं अलग तरीके से आपको पूछूं कि अगर पावर ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो कैसे होगा? बिल्कुल, ऊर्जा नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, कैसे ग्रो, कौन सी चीज चलेगी? मेरे ख्याल से हम भी जो स्टूडियो में बैठे हैं, जहां बैठे हैं, उस पे भी हम बात ही नहीं कर पाएंगे, आप केवल अंधकार देखेंगे। तो पावर के बिना कोई काम नहीं हो सकता। देखिए, इस विषय में मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमने प्रधानमंत्री को अक्टूबर 2012 में एक ओपन लेटर दिया, एनर्शिया का ओपन लेटर। इसमें हमने पूरा रास्ता दिखाया, रोड मैप दिखाया, जो सरकार कर सकती थी सन 2012 में ये कर लेती तो ये विफल परिस्थिति नहीं आती और देश में राजनीति में इस तरह का भूचाल नहीं आता, क्योंकि हमने इसमें बताया था कि देश की अर्थव्यवस्था को लेने के लिए ये हमारा सेंटेंस है कि फॉर 9% ऑफ इंडियन जीडीपी ग्रोथ रेट टू सस्टेन वी नीड 25 to 30 गीगावाट पर एनम ऑफ कैपेसिटी एडिशन ऑन अ सस्टेन बेसिस। 12वीं और 13वीं प्लान के अंदर, मतलब 12वीं और 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हमें अगर 9% की जीडीपी ग्रोथ की आवश्यकता है इस देश में, और वो बिल्कुल है, क्योंकि तभी हमारा देश आगे आएगा, तो हमें हर प्रति वर्ष 25 से 30 गीगावाट का बिजली उत्पादन, नया बिजली उत्पादन करना पड़ेगा। तो इसके अंदर हम 10 गीगावाट भी नहीं कर रहे हैं, इसका क्या होगा सर बताइए? हम तो केवल 10 गीगावाट करने की बात कर रहे हैं, वो भी नहीं कर पा। अगर मान लो हम कर भी रहे हैं तो वो जैसे हमने आगे बताया बैकलॉग ही है, बैकलॉग ही हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नहीं, वो कर नहीं रहे। देखिए, क्या नई उत्पादन की बात कर रहे हैं हम, उसकी नहीं बात कर रहे हैं जो पिछले पंचवर्षीय योजना में डिक्लेयर कर दिया गया है। हम कह रहे हैं नवीन उत्पादन। मूर्ति साहब, नवीन उत्पादन के लिए जितना प्लांट्स आना है उसका साथ जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, विच अगेन आई विल कम बैक टू द वर्ड कॉल्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। आप कोई कोयला का प्लांट लगा रहे हैं, कोल प्लांट, देन यू मस्ट हैव प्रॉपर कोल लिंकेज फॉर दैट, फॉर द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, which today we are facing that particular problems in many of the UMPP projects and many of the coal plants are suffering because of इस विषय पे हम अगले इसमें आएंगे। Yes. क्योंकि मैं चाहूंगा, हमारे पास और भी है, हमारे अगले एपिसोड में इस तरह की बातें होंगी पावर जनरेशन की, लेकिन मैं आपको इस पे फोकस करना चाहूंगा कि हम इसमें कर रहे हैं ऊर्जा गरीबी। ये जो शब्द है ये कई साल पहले एनर्शिया ने यूज किया, और हमारे साथ मूर्ति साहब बैठे हैं, हेतल भाई बैठे, जो शुरू से जुड़े हुए हैं। ये विश्व में ही हम लोगों ने, एनर्शिया ने पहली बार एनर्जी पॉवर्टी नाम के शब्द का इस्तेमाल किया, वापर किया, और ये आज हम इसी बात पे आ गए, कैसे देश ऊर्जा के रूप में असुरक्षित हो जाएगा अगर वो अपने सिटीजन्स को बिजली नहीं पहुंचाएगा। देखिए, बिजली नहीं पहुंचाने से बाकी सब कुछ भी इंपैक्ट होता है। बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो किसान अपना पंप एनर्जाइज नहीं कर पाएगा, बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो कोई भी कोऑपरेटिव सिस्टम में जो लोग रह रहे हैं उनको पानी नहीं मिलेगा, बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो म्युनिसिपैलिटी पानी पंप नहीं कर पाएगी, बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो म्युनिसिपैलिटी अपने वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर पाएगी, बिजली नहीं पहुंचाएंगे तो कारखाने बंद हो जाएंगे। तो सर, हम क्या बात कर रहे हैं? बिजली नहीं तो आपका हम कहां जा रहे हैं? हम कौन से खड्डे में जा रहे हैं? ये कौन सा कुआं है, कौन सा ब्लैक होल है जहां पहुंच रहे हैं हम? बताइएगा। सन्नाटा हो गया, कौन से ब्लैक होल में जा रहे हैं मूर्ति साहब? वी आर गोइंग टू गेट इट अ बिग ब्लैकआउट्स। अब हम ब्राउनआउट से ब्लैकआउट की तरफ जा रहे हैं, तो देश को हम ऊर्जा से वंचित करने की तरफ जा रहे हैं। Absolutely, the present pattern shows that we are going to land into that type of situation if you are not going to add up fast, and other measures are taken to add up the capacity and utilize and decrease the T&D losses faster enough. Unless you do this and everyone is provided with the minimum power requirements, it's very difficult to sustain. क्या हमारे पास, मूर्ति साहब जो बोल रहे हैं, क्या हेतल भाई, हमारे पास ऊर्जा के स्रोत हैं? बिल्कुल है, बढ़िया, हर स्रोत। देखिए, ऊर्जा के स्रोत हैं। कंप्लीट रूप से देश को गुमराह किया जा रहा है कि इस देश के पास कुछ नहीं है, इस देश के पास बहुत कुछ है। सौर ऊर्जा के संबंध में जब हम बाद में बात करेंगे किसी एपिसोड में, आपको बताना चाहूंगा कि ये देश
पूरे विश्व के अंदर सबसे पावरफुल सौर ऊर्जा देश के रूप में उभर सकता है। और इसमें मैं बोलना चाहूंगा, वी आर अ कंट्री ऑफ लायंस लेड बाय आई डोंट नो वेदर डोंकीज और वेदर वी आर लेड बाय सम टटूस और आई डोंट नो, ऐसी परिस्थिति आ गई है। आम आदमी की जो आम आदमी जो दूसरे बात करे वो आम आदमी नहीं, असली आम आदमी की बात कर रहा हूं, है। तो मैं ये ऐसा नहीं कि आम समझ के चूस के आदमी को फेंक दे, वो वाले आम आदमी नहीं, असली आम आदमी को पावर नहीं दिया जा रहा, उसको गुमराह किया जा रहा है, उसको बिजली से वंचित किया जा रहा है। ये इस प्रोग्राम में हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं और मैं एक तरह से इस पर्टिकुलर एपिसोड को, इस वक्त को, कि हम आपसे बहुत चर्चा करेंगे, ये मूर्ति जी और हेतल भाई और भी लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, ये अगले एपिसोड में आप देखेंगे। लेकिन इस एपिसोड में हमने गर्मा गर्मी में आपको बताना चाहा कि देश की क्या परिस्थिति है, विफलता कितनी है, हमारी क्या हालत है दूसरों के खिलाफ। तो इसमें मैं अगले 2 मिनट के अंदर चाहूंगा शॉर्ट शब्द कि क्या करना चाहिए हेतल भाई। अच्छी तरह प्लानिंग, गुड गवर्नेंस, जो प्लान हम करें उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रॉपर एफिशिएंसी से हर एक को काम करना है। ये हमारी आज की ज़रूरत है, पावर सेक्टर की ज़रूरत है। मूर्ति साहब, Basically, is planning, implementation, project management, decision making, and a vision of the power for the next 20 years for the country. बहुत बढ़िया। तो मूर्ति साहब ने क्या बोला और हेतल भाई ने क्या बोला कि हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें उस प्लान को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, हमारी पॉलिसी और गवर्नेंस पैरालिसिस जो हो गई है इसको संपूर्ण रूप से खत्म करना पड़ेगा। ये तो कैंसर है देश का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमने बताया कि ये अगर देश बढ़ना चाहता है तो उसको 9% की ग्रोथ रेट की तरफ जाना पड़ेगा, अग्रसर करना पड़ेगा। वो करना है तो ऊर्जा क्षेत्र में हमें हर साल प्रति वर्ष हमें 25 से 30 गीगावाट नवीन या न्यू और नए कैपेसिटी का उत्पादन करना है, लगाना है। और ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, मुश्किल नहीं है, चैलेंज जरूर है, लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह होगी वहां राह होगी। इसके साथ मैं आपके साथ इस एपिसोड में विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद मूर्ति साहब, धन्यवाद हेतल भाई। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के में आपके साथ भी और दर्शकों के साथ भी। बाय बाय। दिस इज प्रोफेसर आयर ऑन द एनफ्रा शो।